Good morning students, I am Mrs. Madhuri Nima from New Catholic Mission School, Java. Today I am going to teach you class 4th maths and the name of the chapter is time. Chapter 3, time. So in this chapter we will learn about time. You know, when we get up early in the morning and went for the shopping and play, going to play and watching TV. So need to every time show the time. So how to show the exact time in watch? So today I am teaching you. Okay, so first in this chapter we will learn how to show exact time, convert the time, AM and PM, and digital clock, how to show digital clock, and how to convert digital clock time in 12-hour Indian time, and convert name of the days, and how many days in a month, and how many days in a 2-3 months. Okay, so today we will learn about time. So first let's see our first question. Write the exact time. आपको लिखना है write the exact time. How to write exact time? तो first I show to here, teach you how to draw watch. So let's see here how to draw watch, students. So first you have to question 1. Question 1, write the exact time. Write the exact time. What is time? 2:53 and 9 o'clock. Question A, 2:53 and B, 9 o'clock. Okay, so how do you show this time? So for that show time, first you need to draw watch. And how to draw watch? So let's see here. First you draw. Here you have a circle, no, at your home, your mama's ring, your mama's chudi. So you make a big circle, and with compass you can draw circle. Okay, so let's see here how to draw circle. First we draw here 4 dots. Then after that okay, so first need to draw a circle. Okay, then in clock 4 part. Okay, 4 part and 3 hands. Okay, minute hand, second hand and hour hand. आपने देखा घड़ी में 3 सुई रहती है, एक मिनट की सुई, मिनट हैंड लॉन्गर. जो घड़ी में सबसे बड़ा वाला कांटा रहता है वो क्या है? मिनट हैंड. एंड आर हैंड छोटा वाला कांटा क्या रहता है? आर हैंड. और जो पतली सी सुई जैसा घूमता हुआ बार बार घूमता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड. सो इन क्लॉक 4 पार्ट, 4 क्वार्टर पार्ट. ओके, सो फर्स्ट हियर विल डिवाइड अप साइड एंड डाउन साइड. 4 पार्ट. एग्जैक्ट 4 पार्ट एंड इक्वल डिस्टेंस. कर लिया आपने. फर्स्ट मेक अ बिग सर्कल, देन डिवाइड दिस क्लॉक इनटू 4 इक्वल पार्ट. ओके, ये बिल्कुल आपका यहाँ से यहाँ बिल्कुल क्या होना चाहिए? सामने बिल्कुल कट. और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस क्वार्टर पार्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट. इक्वल पार्ट, इक्वल डिस्टेंस. कैसे होना चाहिए? बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस. ओके, this clock first divide 4 part, then after that divide into 2 equal part. Then after this 4 1 2 3 4 equal distance.
ये आपका थोड़ा बड़ा होना है। ओके, सो दिस जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है ये आपको मिनट दिख रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट यू राइट दिस इज, आपने देखा घड़ी में यहाँ पे कितना रहता है 12, दिस इज 1, दिस इज 2, देन हियर 3 एंड हियर 4, हियर 5, 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, then 11 and then 12. So after that you will write number. Then so see here, आपने देखा from 12 to 1, ये आपने देखा है 12 to, यहाँ पे नंबर लगाए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. नहीं, now here अब आपने देखा है जब छोटा ये this type, दिस इज लॉन्गर हैंड एंड दिस इज शॉर्टर हैंड। घड़ी में देखा आपने एक छोटा कांटा रहता है, एक बड़ा कांटा रहता है। तो बड़ा कांटा जितना कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, जब अगर 12 से आया है तो फ्रॉम 12 to 1 5 मिनट। कितने मिनट हो गए आपने देखा यहाँ 12 के बाद 1 2 3 4 एंड 5। अगर 1 पे आया तो ये कितने मिनट हो गए 5। यहाँ से अगर इस बड़ा कांटा यहाँ से यहाँ तक आया तो कितने मिनट हो गए 10 मिनट। So this is 5555 minute distance. Okay, so here now in your question given here write the exact time. आपको बताना है एग्जैक्ट टाइम। क्या टाइम बताना है 2:53। क्या बताना है 2:53। सो 2 जो आगे का टाइम है, ठीक है, ये लगेगा जो आर एन, दिस इज आर एन एंड दिस इज मिनट हैंड, ठीक है। यहाँ पे जो आगे का टाइम है आर हैंड है, मतलब ये छोटे कांटा लगेगा और 53 के लिए क्या लगेगा बड़ा कांटा। सो हियर यहाँ पे आपको देखना है 2, कहाँ पे हो रहा है आपका 2, और दिस इज इन क्लॉक, दिस इज सेंटर पॉइंट। यहाँ से 3 और 9 के बीच में क्या होना है सेंटर पॉइंट। अब आपको बताना है 2:53, तो शॉर्टर हैंड ऑन 2, क्या होना है शॉर्टर हैंड 2। आपको पूरी एक बड़ी लाइन खींचनी है स्केल से, विथ स्केल यू हैव टू ड्रा शॉर्टर हैंड ऑन 2 एंड लॉन्गर हैंड ऑन 53। तो हाउ टू राइट 53, तो यू विल काउंट हियर, ओके। 53 मीन्स 5 यहाँ से यहाँ तक चला 5 मिनट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 6 जा 30, 35, 40 एंड 45 एंड 50। ये आपने देखा 5 10 जा 50। देन आफ्टर दैट यू हैव टू नीड मोर 3 मिनट। सो 10 यहाँ पे हो गए 10, 50 मिनट। अब आपको बताना है कितना 53। सो 50 आफ्टर, ये जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है आपको, ये आपको काउंट करना है 50 आफ्टर 51, 52 एंड 53। सो लॉन्गर हैंड ऑन हियर, ये आपको पूरा मिलाना है। देन आफ्टर दैट अब आपने देखा शॉर्टर हैंड ऑन 2 एंड लॉन्गर हैंड ऑन 53। तो आपको बड़ा और छोटा दिखाना, पर अभी यहाँ दिख रहा है क्या बड़ा और छोटा काटा, नो। सो विल बी यू रब, थोड़ा सा आपको रब करना है शॉर्टर हैंड। आपने दिखा ये काटा छोटा बनाना है। सो एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको क्या करना है पूरा खींचना है। देन आफ्टर दैट यू ड्रॉ रब दिस, ओके। सो दिस इज योर शॉर्टर हैंड, ये आपका हो गया छोटा काटा। एंड और ये आप एक और बात, ये आपने देखा था आपने 2:53 पूरा 2 पे लिया था, बट शॉर्टर हैंड नॉट एग्जैक्ट ऑन 50 ये 2 पे क्यों नहीं रहेगा, तो इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि 53 शॉर्टर हैंड मूव लिटिल मोर, थोड़ा और आगे बढ़ेगा 53 मिनट्स। अब आपने देखा थोड़े टाइम आफ्टर 7 मिनट्स पूरा 3 बजने वाला है, तो जो शॉर्टर हैंड होगा वो भी क्या होगा लिटिल मूव, थोड़ा सा खसकेगा आगे। तो नॉट वी विल कीप एग्जैक्ट ऑन 2 shorter hand. So how to we draw exact 53 time?
सो फर्स्ट हियर दिस इज, ये जो सिंगल लाइन दी है ये यहाँ पे भी आर एंड के लिए है। आपने देखा 2 आपको 53 छोटा काटा एग्जैक्ट 2 पे नहीं लाना, आपको 53 बताना है। तो कैसे बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये आया 15 मिनट्स, ये क्वार्टर पार्ट से। ओके, यहाँ 15 वन से यहाँ से 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45 एंड 15 फोर जा 60। सो यहाँ पे आपने देखा यहाँ से आपको दिखाना 53, तो ये है 15, 30, 45 एंड 60। तो आपको टोटल काटा यहाँ पे दिखाना है 2 पे 30, 45 और 50। ये आपको जो शॉर्टर हैंड आएगा यहाँ पे, इसके आप क्या रखोगे, स्केल से रख के आप ऐसे मिलाओगे। देन आफ्टर दैट लिटिल यू हैव टू ड्रा, इसको रब दिस क्लॉक नाउ एंड आफ्टर दैट यू हैव टू, इसको आपको बड़ा काटा दिखाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये बड़ा काटा। दिस वे यू कैन शो द टाइम एंड आफ्टर दैट यू राइट हियर टाइम। क्या लिखोगे, दिस वाज शोइंग हियर 2:53। सो अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ यू हैव टू ड्रा हियर 9 o'clock। आपको बताना है 9 o'clock एग्जैक्ट टाइम। 9 के बाद आपने देखा 9 मिनट्स हियर। सो हाउ टू ड्रा हियर, हाउ टू यू शो एग्जैक्ट टाइम इन दिस वॉच। सो फर्स्ट दिस इज आर हैंड, ये आपको क्या दिखा रहा, आर हैंड। मिनट हैंड 0 कुछ नहीं है, तो मिनट क्या रहेगा, जो पूरा मिनट पूरा 12 पे रहेगा। तो ऑन दिस इज सेंटर पॉइंट। सो हियर आप यू हैव टू शो शॉर्टर हैंड ऑन 9 एंड लॉन्गर हैंड ऑन 12। ये आपको काटा बिल्कुल छोटा बड़ा आपको दिखाना जरूरी है। मिनट है शॉर्टर हैंड और लॉन्गर हैंड ऑन मिनट एंड शॉर्टर हैंड ऑन आर। तो आपने जितना बज रहा है उस पे आपको बताना है शॉर्टर हैंड और लॉन्गर हैंड का बताना है आपको मिनट्स है। ठीक है, सो दिस वे यू कैन शो एग्जैक्ट टाइम। अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ द मिनट हैंड एंड आर हैंड टू शो द टाइम। यही क्वेश्चन है, आपको मिनट हैंड बताना है, ड्रॉ द मिनट हैंड एंड आर हैंड टू शो द टाइम 22 minutes past 10। अब आपको बताना है 22 minutes past 10, 22 minutes past 10। क्या टाइम दिखाना है आपको घड़ी में, 22 minutes past 10। past 10 मतलब 10 बज के कितने मिनट हो गए हैं, 22 मिनट। 10:22 व्हाट टाइम शोइंग दिस वॉच, 10:22। पास्ट मतलब आगे चले गए। 10 बज के कितना टाइम हो गया है, 22 मिनट। 10:22। सो शॉर्टर हैंड ऑन 10 एंड लॉन्गर हैंड ऑन 22। ये जो है पास्ट 22 मिनट पास्ट 10, तो आप यहाँ लिख लेंगे 10:22। व्हाट टाइम शोइंग दिस वॉच, 10:22। तो दिस इज आर हैंड, ये आपका क्या है, आर हैंड, और ये है आपका है मिनट हैंड। ओके, ये आपका लगेगा आगे वाले नंबर पे छोटा काटा और बड़े वाले नंबर पे बड़ा काटा। तो आपने दिखा है 10, तो वेयर इज योर 10, बट नॉट ए शॉर्टर हैंड ऑन एग्जैक्ट 10। आपको एग्जैक्ट 10 पे नहीं रखना है, बिकॉज यार 22 मिनट्स मूव, तो शॉर्टर हैंड ऑल्सो मूव। सो हियर फर्स्ट दिस इज सेंटर पॉइंट। नाउ आफ्टर दैट शॉर्टर हैंड ऑन 10 के बाद ये 15 मिनट्स और इससे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ से इसको मिलाना है। देन आफ्टर 22 मिनट, सो विल काउंट हियर 22, यहाँ पे आया 5, 10, 15, 20, और आफ्टर 20 जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है वो आफ्टर 20, 21 एंड 22। ये दिख रहा है आपको 22 यहाँ पे, तो आप इसको पूरा स्केल से रख के आप इसको सीधा मिलाएंगे। देन हियर आपको ये दिखा है, उसके बाद रब, दिस इज शॉर्टर हैंड, दिस इज लॉन्गर हैंड। इसको थोड़ा छोटा कर दो, इसको थोड़ा बड़ा। सो नाउ विल रब। This is showing what time showing this watch, 22 minutes
10:10. 10 बज के आपको कितना मिनट हो गया है? 22. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है 15 minutes to 3. व्हाट्स योर क्वेश्चन? 15 minutes to 3. योर क्वेश्चन है 15 minutes to 3. व्हाट्स योर क्वेश्चन? 15 minutes to 3. 15 minutes to 3 मीन्स क्या होता है? इसका मतलब 15 minutes to 3 मीन्स अभी 3 o'clock कंप्लीट होने में 15 मिनट बाकी है या 15 मिनट्स कम हो रहा है. इट मीन्स 2:45. व्हाट टाइम शोइंग दिस वाज? 2:45. पास्ट मीन्स आगे बढ़ गया टाइम और 2 मीन्स अभी उसमें बजना बाकी है, पूरा 3 o'clock नहीं हुआ. सो इट मीन्स 15 minutes to 3. So 15 minutes to 3 means 2:45. So how to show 2:45? So 2:45. So shorter hand, this is shorter hand and this is longer hand. This is hour hand and this is minute hand. आप ऐसे बता लेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा. Now here this is minute hand. So now this center point. So you will show here 2 hour 2:45. But shorter hand not keep on exact position 2. Little move. 2 से कितना मिनट मूव होना है? 45 मिनट. So here 1 and 2 and 45. How to kind? 15 1 are 15, 30. यहाँ से 15 2 are 30 and this 45. यहाँ पे आपने देखा इसको, आप स्केल से करना है, ठीक है. नाउ आफ्टर दैट 45 मिनट. तो हाउ टू काउंट 45? 5 की टेबल 1 से बोलना है. 5 1 जा 5, 5 5 9 जा 45. सो ये 45 यहाँ पे है, ये आपने स्केल से यहाँ पे इसको ऐसे मैच करा एग्जैक्ट 9 पे जो मिल रहा है, ठीक है. नाउ यू रब लिटिल रब. अब आपने देखा है ये 5 9 जा 40. दिस इज लॉन्गर हैंड, दिस इज शॉर्टर हैंड. सो यू रब लिटिल. .8, ठीक है. सो दिस वाज शोइंग हियर 2:45. सो दिस वे यू कैन राइट हियर, शो द एग्जैक्ट टाइम एंड ड्रा द longer hand and shorter hand, minute hand and hour hand. This way you can show. And now your third question. Third question, mention AM or PM. अब आपको मेंशन करना है AM पेयर. हाउ कैन यू फाइंड आउट AM एंड PM? कैसे पता चलेगा कि ये AM लिखना है या PM? सो स्टूडेंट्स 12 o'clock नून, सुबह की 12 o'clock नून टू 12 o'clock मिडनाइट, मतलब दोपहर की 12 बजे से रात की 12 बजे तक जो भी टाइम रहता है वो टाइम क्या रहता है? PM टाइम. ओके, कैसे PM? आफ्टर 12 o'clock. 12 o'clock नहीं, जो अगर 12 बजे एग्जैक्ट 12 तो विल राइट नून. बट आफ्टर 12 o'clock टू मिडनाइट, 12 o'clock मिडनाइट, दोपहर की 12 बजे से रात की 12 बजे तक का जो समय रहेगा उसको अपन लिखेंगे PM. एंड देन 12 o'clock मिडनाइट, रात की 12 बजे के बाद 12 o'clock मिडनाइट टू 12 बिफोर 12 o'clock नून, एग्जैक्ट जो 12 o'clock नून उसके पहले का जो समय रहेगा वो AM टाइम. सो दिस वे विल राइट AM एंड PM time. So here your question is mention AM और PM. अब आपका टाइम है मेंशन करना आपको AM और PM. कैसे लिखोगे? wake up at 6:30. wake up at 6:30. आपको 6:30 पे उठना है. आप रात में उठेंगे या मॉर्निंग में उठेंगे? मॉर्निंग टाइम. So it means 6:30 AM. What will write here? 6:30 AM. Understood everyone? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, रिटर्न टू स्कूल. आप स्कूल आए, स्कूल से वापस घर जाना है. ये आपको पता है आफ्टर 12 o'clock नून, दोपहर के बाद ही अपन स्कूल से रिटर्न होंगे. इट मीन्स दिस इज आफ्टर 12 o'clock टाइम, 12 o'clock नून, इट मीन्स PM. सो विल राइट हियर रिटर्न टू स्कूल. व्हाट टाइम विल राइट हियर? PM. 3:30 PM. नाउ सनसेट्स. अब आपने देखा है सनसेट्स, सन सेट्स एट 6:30. शाम को सन हुआ है, मैंने क्या बताया आपको?
12 बजे के बाद से, दोपहर के 12 बजे से रात की 12 बजे तक जो भी टाइम है, व्हाट टाइम? PM. सो दैट्स वाई सन सेट्स, आपने देखा है सन कब अस्त हो जाता है, सूर्य कब डूबने लगता है? शाम के टाइम. शाम के टाइम किसका है? दोपहर की 12 बजे के बाद. देन आफ्टर दैट विल राइट हियर PM, 6:30 PM. Understood how to write AM and PM time? No? So now ask for question, read 24-hour clock time. अब आपको बताना है 24-hour clock time. अब 24-hour clock आपने देखा डिजिटल क्लॉक, आपने रेलवे स्टेशन पे देखा है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी? 24-hour clock. उससे कैसा पता चलेगा? अब अपने को 24-hour clock time कन्वर्ट इनटू आवर इंडियन टाइम, अपने को उसको इंडियन टाइम में करना है, 12-hour clock में करना है. हाउ टू कन्वर्ट 10-hour clock time? Question, read 24-hour clock time. Read 24-hour clock. Okay, read 24-hour clock time, 23 hours. आपका क्वेश्चन है 23 hours and B question 0 at 45 hours. ठीक है, अब ये लिखा है रीड 24-hour clock time, 23 hours and 8:45 hours. How to convert this 24 clock time? So we'll here this is 12-hour clock time. Then after that आप इसके बाहर आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है 24. देन आफ्टर 12 आपने डिजिटल क्लॉक में देखा 24 क्लॉक में 12 के बाद अपने इंडियन टाइम में क्या बचता है? 12 के बाद 1. बट इन 20-hour clock में आफ्टर 12 व्हाट टाइम शोइंग? 13, देन 14, देन 15. तो दिस वे आउटसाइड विल राइट हियर 1, हियर 1 के बाद 12, आफ्टर 13, देन 14, देन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24. This is 24-hour clock time showing. Okay, so here read 24-hour clock time. यहाँ लिखा है 23 hours. What time here? अब आपको बताया 23 hours. तो हाउ टू कन्वर्ट दिस टू अ क्लॉक इनटू इंडियन टाइम? आपको कैसा पता चलेगा कि 23 आवर्स हो रहे मीन्स कितना टाइम हुआ है? सो 23 आवर्स आपने देखा 23 कहाँ पे हो रहा है? 11 आवर. देखा है 23 11 आवर्स, मतलब अभी अपने क्या बजी है? ये 23 आवर्स मीन्स 11 मीन्स रात के 12 बजे. ये दिन का टाइम नहीं है. 11 आवर्स मीन्स 11 PM. ठीक है. हाउ टू फाइंड आउट AM इन 24-hour clock time, AM and PM? अब आपने देखा मोर देन 12, अगर आपकी टाइम में मोर देन 12 नंबर, राइट हियर PM, and less than 12 hours, more than 12 hours and less than 12 hours. ठीक है, आपको वॉच में टाइम में देखना है more than 12 hours and less than 12 hours. So this time, this question showing here 23 hours. It means it is showing more than 12. 23 आपने देखा 12 से ज़्यादा है. It means अगर ज़्यादा है 12 then hours है. More than 12 hours. It means this is showing night time, PM. Okay, what time in Indian time according to Indian time? 11 PM. Okay, and अगर आपने ये यहाँ नहीं करना है तो how can we convert this time? So 23 hours less than 12 hours minus 12 hours. 3 minus 2 1, 2 minus 2 1. This way we can also find out Indian time. Understood? So 23 hours, how to convert 24-hour clocks into Indian time? तो अकॉर्डिंग टू दिस जो भी आपको जो आर दिया है 24 आवर्स क्लॉक में से आपको 12 आवर्स क्या करना है? माइनस. देन आफ्टर दैट विल फाइंड आउट इंडियन टाइम.
So here 23 hours means 23 hour means 11 o'clock PM. Understood? Now here 8:45 hours. What time showing in this question? 8:45 hours. It means these hours less than 12. अब आपने देखा ये जो नंबर है less than 12, 12 से कम. It means this is AM time, morning time. Okay, so here 12 O का ये 8:45 hours. It means आपको ये 8:45 क्या लिखोगे आप यहाँ पे इसको, ये AM time. What time showing here? 8:45 AM. AM time. So this way we can convert here 24-hour clock time into Indian clock time. Now next question, calculate the exact time. So how to show convert exact time? Your next question, calculate the exact time. Calculate the exact time. Okay, now your first question, 20 minutes after 6:05. 20 minutes after 6:05 AM. ओके, योर क्वेश्चन 20 मिनट्स आफ्टर 6:05 AM, मतलब आपको बताना है 6:05 के बाद आपको 20 मिनट्स क्या टाइम होगा. तो विल ऐड हियर, देखा आपने 6 ये आपको 6 बज के कितने मिनट हो गए, 5. इट मीन्स 20 मिनट्स ऐड. सो 6:05 मीन्स 6:25 AM. व्हाट टाइम विल राइट हियर? क्यों? क्योंकि आपने देखा ये मॉर्निंग टाइम है. अगर आपने मॉर्निंग टाइम में और 20 मिनट सेट करे, कोई टाइम चेंज हुआ क्या? नो. सो विल राइट हियर 6:25 AM. नाउ सेकेंड है 15 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट. 15 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट. अब आपने देखा 15 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट. मिडनाइट मीन्स आफ्टर 12 o'clock. मिड मैंने क्या बताया आपको? आफ्टर मिडनाइट. व्हाट टाइम विल राइट हियर? AM. सो 12 o'clock के बाद आपको लिखना है आफ्टर मिडनाइट 15 मिनट्स मीन्स 12:15. व्हाट टाइम शोइंग हियर? 12:15. एंड आफ्टर दैट व्हाट राइट हियर? AM PM. आपने मैंने बताया आपको आफ्टर 12 o'clock मिडनाइट विल राइट हियर AM. सो विल राइट हियर 12:15 AM. ओके, now your third question, 15 minutes after 12 noon. 15 minutes after 12 noon. अब आपको बताना है 15 मिनट्स आफ्टर 12, दोपहर की 12 बजे के बाद से 15 मिनट ऐड करके क्या टाइम आएगा? तो आफ्टर 12 विल राइट PM टाइम. 12 o'clock noon. So we'll write here 12:15 what? PM. So understood how to write PM and AM time? After 12 o'clock noon to midnight, 12 o'clock will write PM, and 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon will write AM time. Okay, now next question is duration the number of days. Okay, now student, our next question is duration the number of days. Question, duration the number of days. First question is from 10th June to 15th July. From 10th June to 15th July. And next question is from 25th December, from 25th December
to 14th January. Okay, duration, the number of days. So how to find out duration, the number of days? So for that, अब आपको पता होना चाहिए how many months in a year? Total 12 months. You know how many months in a year? 12 months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. And how many days in this month? So how can we, अपन याद नहीं कर सकते हैं कि कितने कितने दिनों में होते हैं. So for that you will be take out your this hand and from 4 finger, आपको ये वाली फिंगर से आपको काउंट करना है. ओके, दिस इज, अब यहाँ जो ऊपर देखा आपने ये उठा हुआ है, ये यहाँ पे आपका 31 डेज एंड ये जो ऊपर वाले हैं सारे 31 डेज और जो नीचे की साइड है दिस इज शोइंग हियर 30 डेज. ओके, ओनली लेफ्ट फेब्रुवरी के छोड़ के. अब आपने देखा दिस इज जनवरी, देन जनवरी आफ्टर फेब्रुवरी आपको पता है 28 और 29, जनवरी 31, फेब्रुवरी 21, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 एंड जून 30 एंड जुलाई 31. देन अगेन रिपीट जुलाई आफ्टर अगस्त. सो अगस्त देखा आपने ये ऊपर की साइड आ रहा है, अगस्त 31, अगस्त सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31. अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ टू फाइंड आउट? आपने देखा अपना हाथ ऐसा करना है, नहीं जो ऊपर वाला ये दिख रहा है आपको, ये सब ऊपर जो उठा हुआ भाग है वहाँ पे सब 31 डेज और जो सारे नीचे की साइड आएंगे जिन महीनों के नाम वो कितने देंगे 30 डेज ओनली फरवरी को छोड़ के. तो अगेन विल सी हियर जनवरी 31, जनवरी, फेब्रुवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, जून 30, जुलाई अप्रैल जनवरी 31, फेब्रुवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31. अब यहाँ खत्म हो गया. अगेन विल रिपीट आफ्टर जुलाई विच मंथ? जुलाई अगस्त. तो अगस्त देखा आपने ऊपर नाम आ रहा अगस्त का, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31. So understood? This way you can write name of number of the days in कितने महीने में, एक महीने में कितने दिन होते हैं. So from 10th June to 15th July. अब आपको लिखना है जून टू जुलाई, बताओ कितने महीने हुए. So we'll write here from June. We'll write here, आपको जून से शुरू करना है, जून और जून से लेके जुलाई. तो जून आफ्टर विच मंथ? जुलाई. जून एंड जुलाई. ओके, सो हियर हाउ मेनी मंथ इन जून? अब मैंने आपको बताया आपको जून में देखना है. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. आपने देखा है जून का नाम नीचे आ रहा है. हाउ मेनी डेज जून? 30 जून. बट जून में कितने दिन होते हैं? 30. जून का महीना कितने दिनों का होता है? 30 डेज. नाउ हियर बट आई विल काउंट हियर 10th जून. आपको कौन से महीने से, कौन से तारीख से आपको करना है? फ्रॉम 10th जून, 10 जून से आपको दिन काउंट करना है. सो हाउ टू यू काउंट हियर? 10th जुलाई, 10th जून टू 30 जून, 10th जून टू 30 जून. अब बहुत से बच्चे 10th जून टू 30 जून 10, बट 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, 20, 0 माइनस 0, 3 माइनस 1, 2, 20 करके यहाँ पे जून के लिख दे, नीचे लिख देंगे 20. नो, इट इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज हियर 10th जून ऑल्सो विल काउंट. 10th जून को आपको 10th जून से स्टार्ट है तो 10th जून ऑल्सो विल काउंट. 10th जून को आपको काउंट करना है. ठीक है. सो 10th जून टू 30 जून, इट मीन्स हियर हाउ मेनी डेज? 11 डेज. मतलब 10th आफ्टर 10 20 डेज एंड 10th ऑल्सो काउंट 1 डे मोर. सो इट मीन्स हियर 21 जून. कितने दिन हो गए जून के? 21. एंड फ्रॉम विच डे? हियर 15th जुलाई तक काउंट करना है तो जुलाई के हो गए 15. जून एंड जुलाई 15. इट मीन्स हाउ मेनी डेज टोटल हियर? टोटल 36 days. Understood everyone how to find here?
month, total how many days in both month.